first method we saw was hit and trial method, correct? And second method was your, yes, anyone remembers which was the second method? क्या फॉर्म कर रहे थे हम लोग सेकेंड मेथड में? दिस पीसी कौन है? अपना नाम बदलो. दिस पीसी वाले भैया अपना नाम बदलो. या सेकेंड मेथड, एनीवन रिमेंबर्स? क्या किया था हमने सेकेंड मेथड में? वी हैड फॉर्म्ड सर्टेन इक्वेशंस, करेक्ट? हमने कुछ इक्वेशंस बनाए थे, करेक्ट? और वो इक्वेशन के बेसिस के ऊपर हमने क्या निकाला था? Based on those equations we had calculated the, yes, anyone remembers? And based on those equations, है ना, जैसे हम लोग हमारी इक्वेशन था, करेक्ट? a plus b gives me c plus d. तो what all stoichiometric coefficients were there on the left, we equated with that on the right, correct? And that's what we had done. So I'll just revise that part and then we'll see the ahead part of the chemical reaction equations, correct? So we're seeing the one note right now. Anyone remembers what was the date last Wednesday? Last Wednesday, what was the date? Fourth. Okay, yes, thank you. So that's what we were seeing there. Correct? So as it's visible on your screen, second method, this was the thing which we had done in your second method. Correct? Right? So just like with this reaction we are seeing, NH3 plus O2 gives me NO plus H2. क्या किया हमने यहाँ पर? I just put A, B, C, and D. These are called as stoichiometric coefficients in front of that. ना, A, B, C, and D, right? और वो उससे फिर इक्वेशन फॉर्म किया, A is equal to C, 3 is equal to 2D, 2B is equal to C plus D. और सिंपल मैथमेटिक्स में जैसे इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, and just like what we do in the simple mathematics, correct? Nothing else we did, correct? Apart from that, and you solve it, you get all those equations, right? That's what we had seen in your last lecture, correct? और एक होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, S plus HNO3 I hope all of you have done that homework. However, we'll now move ahead seeing your further parts, right? I hope this is visible to all of you. दिख रहा है क्या? यश पिंगड़े दिख रहा है क्या? कहाँ गया यश पिंगड़े? चला गया, ठीक है. Others visible? Arnav, is it visible to you? Aditi? Yes, sir, it is visible. Okay. है ना? So as all of you remember, we had seen the correct chemical reactions, you know, and all those things. How to write a chemical reaction, we saw those part, correct? Balancing we saw by two methods, right? Okay, so that was not the part which I want to, but now this is the important part we are going to discuss today, correct? The types of chemical reactions, correct ना? मतलब chemical reactions के कौन से type होते हैं वो हमको देखना है आज, right? And how many types are there? Just read that part. There are how many parts? There are 5 types of reactions we are going to study today. Which is the first one, right? First one is the combination reaction, correct? Second is decomposition reaction. Third is displacement reaction. Fourth is double displacement reaction, correct? And last one is your redox reactions, correct?
So you just neglect that fourth one. There is a 5 bit spelling mistake. Just O is missing. Not a problem. ठीक है? It's become double, right? Okay. So these are the 5 types of special chemical reactions which happen now. Yeah. So till now what we have seen is that कि chemical reaction क्या है? हमने first lecture में देखा था what is a chemical reaction. Second lecture we saw that okay, if I know the chemical reaction, just like chemical reactions are physical reaction or chemical reactions. तो physical change क्या है, chemical change क्या है, physical reaction क्या है, chemical reaction क्या है, और chemical reaction पता चल गया है तो उसको बैलेंस कैसे करें. अब ठीक है, रिएक्शन लिख लिया हमने, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड में होते हैं आपके प्रोडक्ट्स, है ना. और उसमें बहुत सारी चीजें भी आप डाल सकते हो, जैसे आप कभी कभी बीच में डेल्टा साइन डालते हो, किसके लिए, हीट के लिए, करेक्ट ना. या फिर कभी कभी ऊपर वाला एरो लगाते हो, किसके लिए, है ना, टू डिटरमाइन दैट कि एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड आउट, एनर्जी को बाहर फेंका जा रहा है, करेक्ट. दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी, बट अपवर्ड साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट व्हाट, it's used to represent a gas, gaseous form में जाता है. डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका पीपीटी फॉर्म है. पीपीटी मतलब अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बेटा, पीपीटी मतलब क्या, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, करेक्ट, उसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, राइट. ओके. और ये क्या पार्ट अभी डिस्कस करें, ये कौन से अलग अलग टाइप के हैं रिएक्शन है. ओके, या so you're able to read this, you know, what is combination reactions? Anyone would like to read? You could raise your hand. ठीक है, जो पढ़ना चाहता है वो हाथ ऊपर करे. किसी को नहीं पढ़ने की इच्छा? No one wants to read. Shivang Patil. Okay, read. क्या सर? Wait, तुम अभी अगला पढ़ो. Natasha can read now. Combination reactions, when two reactants combine to form a product, it is called a combination reaction. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce spectrum, that is calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. Is equation CaO plus H2O, that is Ca in bracket H2O. OH twice. That is sorry, calcium. OH twice. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical form of a marble is also CaCO3. Yeah, very interesting. Correct. तो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जो भी दो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं, सिंपल है. कॉम्बिनेशन मींस टू कंबाइन. गेटिंग अ पॉइंट. किधर गए? कॉम्बिनेशन मींस व्हाट, टू कंबाइन, है ना. जस्ट लाइक टू रिएक्टेंट्स दे विल कंबाइन. CaO plus H2O क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं. क्या देने के लिए, CaOH ट्वाइस. सो वेरी सिंपल. और वो इफ ए रिएक्शन इज A plus B, इट वुड गिव मी AB. यानी जैसे आपको राइट साइड में दिख रहा है रिएक्शन, करेक्ट ना, क्या दिख रहा है यहाँ पर, Ca plus S gives me what, CaS. मतलब जो भी दो रिएक्टेंट है वो क्या बन रहे हैं, वो जस्ट कंबाइन हो गए एक साथ. जैसे CO plus H2 give me one single product, राइट. और आगे थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, CaOH जो बना है, इट विल रिएक्ट स्लोली विद वूम, कार्बन डाइऑक्साइड. तो CaOH आगे जाके CO2 के साथ रिएक्ट करेगा इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, करेक्ट. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या करता है, आगे जाके किसके साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करता है, करेक्ट ना. टू गिव मी व्हाट, टू गिव मी calcium carbonate. If all of you remember one time
In your 8th standard also we had done this part of combination reactions, combination double displacement kind of thing. याद आ रहा है किसी को हमने किया था एक बार? Any members? ऋग्वेद जोशी. हाँ सर. हमने ये किया था पार्ट एक बार, याद है क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पर कंप्लीटली नहीं याद आ रहा. ठीक है. So this is there in this chapter also, but it is more detail. तो क्या हो रहा है, COH ट्वाइस आगे जाके फिर से रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, क्या देने के लिए? CSO. तो वो भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. That also is a combination reactions where COH twice, would give me what? COH twice would give me with reaction of CO2 क्या देगा? CaCO3 देगा. ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमने किया है. तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. करेक्ट. कितने दिन के बाद मिलता है? 2-3 दिनों के बाद मिलता है. समझ में आई मेरी बात? सब लोग जा क्यों रहे? ओके. या तो मार्बल भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट की आपका मार्बल. इसमें कुछ डाउट है किसी को? कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझने में कुछ डाउट है किसी को? नो डाउट. ठीक है. नो सर. ओके. ओके, तो we'll do this only before that. Yeah, next point. Who would like to read? शिवांग पाटिल पढ़ो. Yes sir. एक minute. Reactions in which heat is released along with the formula of products are called exothermic. Formation है वो. Sorry. Reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Yeah. Burning of. So this part all of you know already, correct ना? These are also special type of reaction. Combination reaction और exothermic reaction भी होता है जिसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है, लिया जाता है. एक्सोथर्मिक दिया जाता है बेटा. देते हो ना बाहर, हीट एग्जिट करता है. हाँ सर. पढ़ो आगे. Burning of natural gas and the decomposition of vegetable matter into compost are also an example of exothermic reaction. तो इसमें भी क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको पिक्चर में. वो भी क्या है? वो भी क्या बाहर दे रहा है? वो भी हीट को बाहर दे रहा है. ठीक है, तो कोई रख ही नहीं रहा है हीट को. सब लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग हीट को बाहर देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे. Everyone is giving heat out. Correct. Heat out or heat in. Heat out or get out. Heat out or heat in. Correct ना? You understood this way? Exothermic means giving out of heat, right? पढ़ो ये आगे का. कौन पढ़ेगा अभी? Anyone would like to read? अर्नव देवड़ेकर पढ़ो. देवड़ेकर अर्नव कहाँ गए? सो गए क्या? अर्नव हिरेमत. अर्नव हिरेमत पढ़ो. Yes sir. Endothermic reactions are those reactions in which heat is absorbed. During digestion, food is broken down into similar substances. For example, rice, potatoes, and bread contain carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. This is an endothermic reaction too. Correct. तो अंडरस्टूड ना? देखो अभी ये नीचे का थोड़ा एग्जांपल. Image is not a bit clear, but however you can understand that. In a top molecule, what it does, she is saying that such a kind of reaction it will absorb the heat.
and when our food is digested, correct na, when food digests, correct, क्या होता है, food is broken down into simpler substance, correct na. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. This carbohydrate is broken down to form what? Glucose, right? This glucose combines with oxygen in cells and provides what? Energy. But he's saying that such kind of reactions are also endothermic, है ना. ऐसी रिएक्शन को भी क्या लगता है? हीट लगता है, हीट लगता है और एनर्जी देता है बाहर, करेक्ट. तो नीचे का एग्जांपल तो मत लिखो, लेकिन ये सब आप लोग डाउन कर सकते हैं. व्हाट हैपेंस इज दैट इट विल एक्सेप्ट हीट. तो बेसिकली एसेंस इज दैट, you know, endothermic reactions are those which take up heat, okay, which take up heat into them. Understood? Any doubt here? Any doubt? आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि क्या कर रहे हो, फोटो ये निकाल रहे हो? बेटा लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, फोटो निकाल रहे हो? सर स्क्रीनशॉट निकाल लिया. बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग को एग्जाम वगैरह चल रहा है क्या अभी? हाँ सर. कब तक एग्जाम? सर कल स्कॉलरशिप की एग्जाम है और उसके बाद स्कूल की. 14 तक है स्कूल की. ऐसा क्या? 14, आज क्या तारीख है? 11. 11, मतलब फ्राइडे तक बेसिकली. ठीक है. सर सैटरडे तक है. आज 11 है ना. अच्छा 12, 13, राइट राइट राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. I hope you understood this. It's very easy to understand. आपको याद है मैंने आपको एक बार बताया था इसका वीडियो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, COH ट्वाइस. याद आ रहा है किसी को? Remember I had shown you once. जब हमने देखा ना अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनते हैं. वो आदमी वो ईटा लेके डालता है नीचे. Let's see if I could find that video and I will show you that. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं ना. Okay. Let's see now. Вигрузочне вікно. Ви не говорили, що ми для вас спеціально відібрали якісь
дуже якісне вапно. Ми прямо візьмемо його. Отако. Is it clear or no? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या 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 हो ब्लू रहा है? पैच आ गया है। सर ग्रीन और ब्लू पैच आ गया। ऐसा है क्या? एक मिनट, मेरा ये वीडियो ऑफ कर देता है। सर आपने कुछ दूसरा ओपन किया है क्या यूट्यूब के ऊपर? स्टॉप ही करता हूँ शेयर। अभी दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो ये उसका भाषा कुछ अलग ही है, लेकिन Ви не говорили, що ми для вас спеціально відібрали якісь дуже якісне вапно. Ми прямо візьмемо його. Отако. І в шуфлі. ये जो पत्थर डाल रहे हो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहे हैं, ठीक है? Я тільки заберу вугілля. Вугілля ми відкинемо. Вапно на шуфлі. Йдемте до відра. Ще кусочок вугілля ми відкинемо. Засипаємо вапно в This is відро. what calcium oxide, huh? Sir, the screen is actually not visible for me. सर आपने पॉज किया है वीडियो। हाँ, अभी Технологія осіння така, що на 1 кілограм потрібно. अभी दिख रहा है कि नहीं? नहीं सर वही है। ऐसा है क्या? ठीक है, कुछ मुझे बताने क्या हो रहा है। स्क्रीन शेयर करो सर, मतलब यूट्यूब मत शेयर करो, डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करो। वही तो कर रहा हूँ मैं। अभी दिख रहा है कि नहीं? या नहीं? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, मे बी सम अदर टाइम विल सी व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, बाद में कभी दिखता है उसको। तो ये समझ में आया ना आपको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाउ थिंग्स आर कंबाइनिंग, करेक्ट? Okay, yeah, so write down the next one. Right, next one is what? Next one is your decomposition. तो पहला क्या था? कंपोज हो रहा था चीज, कंपोज हो रहा मतलब साथ में मिलना, and things do come together. Right, so first one was things were getting combined, and now the second thing is saying that what? It is getting decomposed. Decomposed मतलब इसका टूट रहा है वो अभी, है ना? So what is saying that when a the product, screen is not visible. really, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा सर। मैं तो दिख रहा हूँ कि नहीं? अरे मैं आप दिख रहा दिख रहे हो पर स्क्रीन नहीं दिख रही। हूँ, रुको अभी। अभी दिख रहा है क्या ये जो मैंने शेयर किया आपको? हाँ सर। पक्का? यस सर। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन, मतलब टूटना, है ना? जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, व्हेन अ प्रोडक्ट ब्रेक्स अप इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट्स, द रिएक्शन इज टर्म्ड एज व्हाट? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अभी FeSO4 है ना? FeSO4 बना था इन सब लोगों से, Fe2O3 SO2 + SO3 से, लेकिन इसमें क्या हो रहा है अभी? FeSO4 ही टूट रहा है ना? इन सब लोगों में Fe2O3 SO2 एंड SO3। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव वन रिएक्टेंट, वो क्या होगा? इट वुड ब्रेक इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, करेक्ट? जैसे यहाँ पर FeSO4 वो टूट रहा है सब में, Fe2O3 SO2 में, SO3 में, सब में टूटे जा रहे हैं। For example, if you want to write some sample reaction, what would happen? ABC is breaking to A plus B plus C. Right? That could be one of the aspects to understand. So he's saying that in this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products.
है ना, करेक्ट. Single reactants will give me number of products. That is important. This is decomposition reaction. Okay. So ferrous sulfate crystals lose water when heated and color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide. जैसे ऊपर हो रहा है अभी Fe2O3, SO2 and SO3. Okay. So decomposition of calcium carbonate मतलब CaCO3. तो क्या बोल रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग वेरियस इंडस्ट्रीज. करेक्ट. तो कौन सा रिएक्शन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है जिसमें आपको लिख के बताता हूँ अभी, रुको. है ना, तो कौन सा वाला रिएक्शन बता रहा था मैं, ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट मतलब अपना ना CaCO3. It would on heating give me what, cow, CaO plus CO2. करेक्ट. इसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग. क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना डिकम्पोजिशन, और बहुत जगह इसको इस्तेमाल करते हैं. पहले कॉम्बिनेशन में तो बताया था कि CO प्लस CO2 क्या देता है, CaCO3. वो कॉम्बिनेशन था. अब क्या उल्टा है, ये क्या है, उल्टा है. मतलब इसमें जो भी मौजूद है वही रहेगा प्रोडक्ट में, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा. एंड ही सेज दैट कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम. इसको क्या कहते हैं हम लोग, you can call it lime or I can also call it as quick lime. Correct. It has many uses. One is in the manufacture of cement. Correct. बहुत सारे सीमेंट भी बनाते हैं इससे. Decomposition reaction carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो यहाँ पर क्या दिया है अभी, ये क्या है, हीट का इस्तेमाल हो रहा है. Such kind of reaction what it is a thermal decomposition reaction. ये क्या है आपका, थर्मल decomposition reaction. Okay, understood. समझ में आएगी मेरी बात, ये वाली. Yes sir. टूटना है बस, इंडिविजुअल पार्ट में कुछ कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं इसमें. If you have ABC, then on heating it will give you A plus B plus C. As simple as that. कॉम्बिनेशन में उल्टा था तो राइट. सो डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन उल्टा ऑफ कॉम्बिनेशन. डिकम्पोजिशन क्या है, उल्टा है किसका, कॉम्बिनेशन. ठीक है बच्चों, समझ में आएगी मेरी बात. Clear? Any doubt? यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है बच्चों? नहीं. ठीक है, आगे बढ़े. ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, निकालना तो जो निकालना था कर लिया. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हमको नहीं देखना है. ठीक है, ये नहीं देखना है हमको. ओके, दिस विल सी थर्मल डिकम्पोजिशन. इसको क्या कहते हैं, और एक शब्द क्या है इसका, इसका और एक शब्द फोटोलिसिस. वन मोर वर्ड कॉल्ड इज व्हाट, फोटोलाइसिस. तो इसे दैट थर्मल मतलब, अभी शब्द तो बहुत आसान है समझना. थर्मल मतलब क्या, हीट देना उसको.
जैसे यहाँ पर हो रहा है हैलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। करेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या दे रहे हैं हम लोग इसमें, सॉरी, हैलोजन कंपाउंड्स डिकम्पोज ऑन एक्सपोजर। जैसे AgCl आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, AgCl। क्या दे रहा हूँ मैं इसको, हीट दे रहा हूँ। जैसे आप चाइना डिश में देखो नीचे, चाइना में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, चाइना डिश में बोल रहा हूँ। चाइना डिश में क्या रखा है मैंने, AgCl रखा है। तो कुछ देर बाद जब उसको सनलाइट मिलेगा तो बाहर आपको दिख रहा होगा सनलाइट, मेरे चेहरे के ऊपर सनलाइट गिर रहा है ना, तो क्या दिखता है वो, क्या होगा, AgCl टूट के बनाएगा Ag+Cl2। समझ में आई मेरी बात। तो सिंपल है, थर्मल मतलब जिसमें हीट दिया जा रहा है। एंड यू सेइंग द फोटोलिटिक रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी तो आपको पता होगा, करेक्ट ना। The decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. तो सिंपल है, हीट की जरूरत है, कैसे भी दे दो आप, करेक्ट ना। एक तो हीट से दे दो, नहीं तो लाइट से दे दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। सनलाइट दे दो, अपना लाइट दे दो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी दे दो। कैसे तो एनर्जी हीट प्रोवाइड करना है, किसके लिए, तोड़ने के लिए। Reactions in which energy are observed are known as endothermic. So it's a part of an endothermic reaction. Right? It's a part of an endothermic reaction. Okay, like that. So what is happening here is they require some heat, and this is called as photolytic. Okay. मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है अपने पास, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अंडरस्टूड दिस पार्ट, कर लिया जो करना था इसका। I will show you something. In this video, I'm going to show you some. Okay, अब बताओ मुझे कुछ दिख रहा है आप, ठीक है। ये विजिबल है शिवांग, शिवांग पाटिल दिख रहा है क्या, ऋग्वेद सर नहीं दिख रहा ठीक से। क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने शेयर किया स्क्रीन मेरा। Photographic method by using selenite. अभी भी नहीं दिख रहा है,
सी नाउ, अब क्या दिख रहा है क्या? नहीं सर। क्या हो गया भैया आज? आप देखो तो, अभी कुछ दिख रहा है क्या आपको? अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? Trade. For this reaction, you need photographic method to use some photographic method by using silver nitrate. For this reaction, you need sodium chloride and silver nitrate. To start the reaction, first I dissolve some sodium chloride in water. Now I add some silver nitrate solution to sodium chloride solution. सोडियम क्लोराइड में AgNO3 को डाल दिया उसमें। Now the sodium chloride reacts with silver nitrate. It forms silver chloride. अरे वीडियो नहीं दिख रहा है अभी भी? क्या बात कर रहे हो? अर्नव वीडियो दिख रहा है कि नहीं? सर 7 सेकेंड्स पे अटका हुआ है। ठीक है। सर हमें आवाज आ रहा है बट वीडियो मतलब वो पहले जैसा ही है। ऐसा है क्या? क्यों हो रहा है पता नहीं। सर आप और एक बार शेयर करो ना। मुझे लगता है जूम का नया अपडेट आया है ना, कुछ तो हुआ है इसमें। कल ही अपडेट किया है इसको मैंने। अब आ रहा है कुछ? हाँ सर अब दिख रहा है। आवाज आ रहा Here is है? the solution. Now I सर remove आवाज आ रहा है पर excess वीडियो water. हाँ सर, सर मतलब वो प्ले नहीं हो रहा वीडियो। मैंने तो प्ले किया है। Now you can see white ठीक है, precipitate. पता नहीं कुछ देखना पड़ेगा। This is silver क्या chloride. हो We रहा need है? to I don't know, अपडेट की वजह से कुछ तो हुआ होगा। ठीक है, दिस इज क्लियर ना फोटोलिटिक? ओके, नाउ विल सी द लास्ट वन। विल सी द लास्ट वन। अब मैंने अपना ये शेयर, आई एम शेयरिंग नाउ द पीपीटी वाला पार्ट। ठीक है, अब ये तो दिख रहा है ना पीपीटी? हाँ सर पर वो ब्लर्ड है। क्यों ऐसा हो रहा है मुझे भी नहीं पता। सर आप भी क्लियर है। तो क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने एलिमेंट डिस्प्लेसेस another element from its respective compound of low reactivity is said to be displacement reaction. Correct? ओके, तो ये आप लोगों को पता ही है ना। जिंक प्लस H2, जिंक क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके H का जगह ले रहा है ना? तो क्या फॉर्म कर रहा है? इस तरह से ZnS फॉर्म कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट मींस इट डिस्प्लेसेस द अदर पार्ट। करेक्ट? जैसे अभी ये देखो राइट में, देखो आपको दिख रहा है आयन को डाल रहे हैं हम लोग ना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो क्या लिखा है वहां पर? तो क्या होता है कुछ समय के बाद? एंड देन रिएक्टिविटी सीरीज वी हैड सीन। आपको पता है कहाँ गया रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी सीरीज इज देयर। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी ऊपर है वो क्या कर सकते हैं? नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, है कि नहीं? सो Zn जिंक इज above H, that's why it is able to displace H, करेक्ट? और जो आयन नेल अभी डाला यहाँ पर, वो रिएक्शन क्या था? आयन नेल का रिएक्शन। आयन नेल का मैं आपको फटाफट से रिएक्शन देता हूँ। क्या है अपना? फॉर एग्जाम्पल दिस इज आयन,
करेक्ट। सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, पूरी ब्लैक दिख रहा है। हाँ सर अब दिख रहा है ना। तो आयन नेल डाला है, देखो यहाँ पे आयन नेल है। Fe प्लस किस में डाल रहे, कॉपर सल्फेट में। क्या देता है ये हमको, Fe प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स मी व्हाट, FeSO4 प्लस कॉपर, करेक्ट। क्योंकि आयन क्या है, कॉपर के ऊपर है, इसलिए आयन नेल को इसमें डाले कॉपर सल्फेट में। कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, ये जो कॉपर है ये कहाँ आ जाता है, कॉपर इसके ऊपर आ जाता है ना, एंड सोल्यूशन बन जाता है। ये सोल्यूशन किसका बना है अभी, सोल्यूशन बना है अभी FeSO4 बन गया, करेक्ट। और ये जो आयन है ना, आयन नेल था, उसका कलर अभी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कलर टर्न्स टू कॉपर कलर, करेक्ट। कॉपर मेटल ऑन आयन, नाउ कॉपर मेटल हैज कम अपॉन आयन, so this is what green iron sulfate solution, and the blue copper sulfate solution turns to green FeSO4। तो ये क्या था पहले, कॉपर सल्फेट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक रिएक्टेंट क्या करता है, दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, करेक्ट, उसकी जगह ले लेता है, टेक्स हिज पोजीशन, उसको निकाल लेता बाहर। So that's what happens in this case. Okay, understood this much point? Any doubts here? No sir. So I guess all of you have this now, exams now. So okay, so all the best for your exams, study nicely. And today's lecture was 2 o'clock, right? Thank you. Yes sir. Yeah. Okay. Okay, so you study nicely, all the best for your exams, right? So we'll stop here. सर ही पीपीटी पाठवता का ग्रुप वरती? हो, पाठवतो. I'll send. ओके सर. Okay, so thank you very much, and let's meet other time. ठीक है? Then mostly next time ma'am will come. So we'll end now. Okay. Okay. Bye bye. Yes, sir.